Hello everyone, we are just waiting for the doctor. Thank you for your patience. Hello, hello, Hello sir, hello. welcome. Hi, everyone, sir. Yeah. So, should we start? Yeah. So hello everyone. I welcome all the viewers in this interactive session that is being hosted by Bloggers Quest. And the topic for today's session is diabetes, a challenge to India. I welcome our guest, speakers Dr. Aman and Dr. Lokesh, and they both are Good. from BHU Evening. Varanasi. Welcome, sir. I hope that Yes, today yes. we are gonna experience a good session with you. So, No, we should start. sir, We do should you start. want to say It's anything already or 8 should minutes I late. go on? Okay, sir. Yeah, sir. Sure. So, the prevalence of diabetes increased tenfold from 1.2% to 12.1% between 1971 to 2000. It is estimated that 61.3 million people aged 20 to 79 years live with diabetes in India. 2011 estimates. Then this number is expected to increase by 101, that is 101.2 million by 2030. So, having doctors from such an esteemed institution is likely that our viewers will have a lot of helpful takeaways from it. I welcome you all and I welcome our speakers today. Thank you, sir, for joining with us. So, we are starting the question answer session. So, the first question goes like, looking at these terrible figures, what's your take on the scenario of increasing diabetes in India? And 77.2 million people in India are said to have pre-diabetes. The second question is, doctor, what do you mean by pre-diabetes? Is it something like 77.2 million people are doomed to end up with diabetes? Or can we Thank you, have a Mancha. reverse First in of this all, I want to situation? thank Bloggers Quest for inviting us and let's start the session. There's one thing, let me be very clear about. The session is all about the lifestyle modifications or the diet that one can make throughout the life as far as diabetes is concerned. So the data you have told me, let me tell you a study made in Canada in 1991 named Melaman study. The study shows that in last 3 decades the amount of exercise जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है वो बढ़ा है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी है एंड द ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न the most common reason for diabetes Yes, is sir. obesity, right? So you ask me what is pre-diabetic. So there are certain blood glucose levels that are diabetic. Yeah. There are certain blood glucose levels that are normal. So the levels between the normal one and the diabetic, this is known as pre-diabetic, right? To be getting more into it, the blood glucose level that we measure is Yes. like with two types. Okay, there is one fasting blood glucose and the another is random blood sugar. So RBS, that is random, we measure it any time of the day. That is why it is known as random. और फास्टिंग को हम लोग सुबह सुबह मेजर करते हैं. तो इन दोनों में अपनी अपनी एक रेंज होती है. जैसे फास्टिंग की मैं बात करूँ जो सुबह मेजर करते हैं उसमें जो नॉर्मल इंसान का होता है जो एक नॉन डायबिटिक है नॉर्मल इंडिविजुअल उसका 100 से कम आना चाहिए 100 मिलीग्राम पर डी और आप अगर 126 से ऊपर आपका आ रहा है तो आप एक डायबिटिक हो डायग्नोज डायबिटिक हो जाओगे आप, ठीक है. तो इसी दोनों के बीच में अगर आप 100 से 125 के बीच में आपका रहता है तो आप प्री डायबिटिक हो. ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप डायबिटिक नहीं हो, आप डायग्नोज नहीं हो, आपको मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप इस सिचुएशन को कुछ हद तक रिवर्सल कर सकते हो. Okay. So should we move forward to another question? So, sir, as we all know that with the ongoing pandemic and anxiety related to it,
the condition of people suffering from it has only worsened. A lot of changes in lifestyle, ways to keep up with one's mental health and keep oneself sane has gone for a toss. What do you think can be done to keep their conditions from getting way worse? And what are the precautions do you think one can take to keep themselves So healthy to and make away it from the very risk of simple, diabetes? let's divide this into two groups. The pre-diabetic ones, I told you the pre-diabetic blood glucose level between normal and the diabetic patients who have been diagnosed as a Yes. diabetes. ठीक है? तो जो प्री डायबिटिक है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट्स लेनी होंगी एंड डायबिटीज जो डायबिटीज से डायग्नोज हो चुके हैं उन पेशेंट्स को अपनी मेडिसिन तो कंटिन्यू करनी ही होगी विद सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड डाइट। इसके हिसाब से वो आगे अपनी लाइफ में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे कि ये सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो ये मतलब जो डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि पहले प्री कोविड एरा में आप जिस तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, आप बाहर जाके जिम जाते होगे, आप वॉकिंग जाते थे, रनिंग जाते थे, वो आपका बंद हो चुका है ना। तो आपको अब मैं इसमें आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ कि आप इस टाइम क्या कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ दो ग्रुप्स में कि एक मिडिल एज पर्सन है और एक ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, तो मिडिल एज घर पे क्या कर सकते हैं और ओल्डर एज क्या कर सकते हैं। तो मिडिल एज आपको सबको पता है, आप मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल और यंग हो तो आप प्लैंक्स, क्रंचेस, पुलअप्स, पुशअप्स, मतलब जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज है, स्किपिंग हो गई, आप टेरेस पे वॉक कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट स्पैन में रन कर सकते हो, है ना। अगर आप ओल्ड एज इंडिविजुअल हो तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई ना, बहुत योगा हो गया, मेडिटेशन हो गए। आप मतलब बेसिकली ओल्डर जनरेशन के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अपने जितना भी घर का एरिया है, नीचे कैंपस है, आप कहीं भी मतलब वॉक करते हो, एक मतलब फ्रेश एयर लो, एक नेचुरल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करो और डाइट और मेडिकेशन पर खास ध्यान दीजिए अपना, तो आप एक अच्छी लाइफ आगे जी सकते हैं। It was very informative, sir. So the fifth question is, according to the stats by Government of India and Health Ministry, only 2 type of diabetics are more than the number of 1 type of diabetics in India. What do you think is the reason behind it? And before getting forward with the answer, it would be helpful for our viewers who would like to know that the difference between the two, that they make it clear for them that what is the difference between two types, So like type let me 2 and explain type to 1 you in a diabetes. very simple manner, है ना। So there is a lock and a key. एक ताला है और एक चाबी। Insulin here acts as a key, and your body cells, whatever cells in your body, that is considered as lock. This insulin is the key. Insulin जो है वो अपनी बॉडी में पेनक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है, वो इंसुलिन बनाता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, ठीक है। तो ये इंसुलिन सेल के सरफेस पे जो लॉक है उसको खोलेगा। इफ द लॉक गेट्स ओपन, जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है, वट एवर शुगर इट कैन गो इनसाइड द सेल इफ द लॉक इज ओपन। तो होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में जो इंसुलिन है वही प्रोड्यूस नहीं होता है। कुछ मैकेनिज्म होती है, ऑटो इम्यून मैकेनिज्म, जो कि जेनेटिक लेवल पे होती है, उसकी वजह से पेनक्रियाज से इंसुलिन ही नहीं बन पाता है। तो इंसुलिन नहीं होगा तो लॉक नहीं खुलेगा, लॉक नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल। सो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज लेवल है वो राइज होगा, ठीक है। दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। एंड टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि आपके लॉक में फॉल्ट है, या तो लॉक अच्छे से खुल नहीं पा रहा है या फिर फॉल्टली खुल पा रहा है, तो उससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है राइज होगा। तो इसको हम मेडिकल टर्म से बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन है लेकिन वो खोल नहीं पा रही लॉक को, अब चाहे जो भी रीजन हो उसके पीछे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, मतलब काम नहीं कर पा रही। इसका मेन रीजन जो साइंटिस्ट ने आज तक निकाला है वो है ओबेसिटी। अगर आप मोटे हो, हद से ज्यादा मोटे हो, तो दैट इज द मेजर कॉज जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आप जैसे देख रहे हो आज की लाइफस्टाइल जैसी हमारी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतने हैं, आप इतनी दूर बैठ के हम लोग बात कर पा रहे हैं, मतलब चल के आते हैं वहां तक तो थोड़ा शायद हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये सारी चीजें, और फिर ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, अब यहाँ से कॉलेज जाना है किसी बंदे को तो बाइक ले ली, तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी बॉडी को डिटोरिएट कर रही है किसी न किसी तरीके से। हम लोग खुश है लेकिन बॉडी डिटोरिएट हो रही है। लग्जरियस लाइफस्टाइल अफेक्ट, मुझे तो लगता है हम लोग की जो जनरेशन है, ये जनरेशन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाली डायबिटीज से। तो हमें सबसे ज्यादा जो अभी लिसनर्स हैं उनको मैं खास बोलना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखें इस टाइम पे। तो ये होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी डेवलप होती है तो
आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज फ्लो कर रहा है वो क्या बोलते हैं यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है ना? यूटिलाइज नहीं। तो ओबेसिटी में मोटा मोटा कहना चाहता हूँ कि ओबेसिटी इज द मेन रीजन टाइप 2 डायबिटीज जिसको हो रहा है, जो कि ओल्डर जनरेशन मिडिल एज ग्रुप में हो रहा है, वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। Type 2 diabetes is very common than type 1. Type 1 It जो है was वो very genetic simply level पे put, होता है, sir. autoimmune. So you can roughly say 90% diabetes है type 2 diabetes, जो कि obese patients में होता है. Most common reason जो है type 2 का वो obesity है. And type 1 वो genetic level पे होता है. आपके अंदर की सेल्स जो है वो खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. पेनक्रियाज की जो सेल्स होती अब है. 30 साल पहले जाओ तो उस टाइम इतना हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे, तो फिर उस टाइम टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज हम इतना कंपेयर नहीं करते थे, इतना हेल्दी क्लियर लाइफस्टाइल थी. इतना क्लियर कट कोई वो भी नहीं था, डिफरेंस भी नहीं था. अब जैसे जैसे आगे तो टाइप 1.5 आ गई डायबिटीज, बहुत सारी टाइप्स ऑफ डायबिटीज हैं इसके अलावा भी. तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए काफी हो गया. Yes, sir. It was very simply put forward. Thank you for the information, sir. So moving forward, the question that goes is like, a lot of people think that they can get rid of the type 2 diabetes if they stop eating carbohydrates or lose a lot of weight. What's your take on that? And our audience would also like to know about the initial symptoms and changes in body that occurs, which would help them Mimansha, if pay you an ask early me, visit to the doctor. is losing weight healthy? Yes, losing weight is healthy, but losing a lot of weight is healthy? No, it is not healthy. That too in the short duration of time. हाँ, that in the short duration of time. एक कम टाइम में आप बहुत सारा वेट लॉस कर रहे हो, वो कभी भी हेल्दी नहीं है. तो कितना हेल्दी है, कितना वेट लॉस आप कर सकते हो? रफली इफ यू से 1 किलोग्राम वेट लॉस पर वीक इज हेल्दी. जब आप वेट लॉस करते हो तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में जाते हो. आपकी जो बॉडी की जो कैलोरीज है, जितनी आपको नीड है, उससे कम में जाते हो कैलोरी डेफिसिट में, तो आप वेट लॉस करते हो. जब आपकी बॉडी आपके आइडियल वेट रेंज में आ जाती है, उसके बाद यू हैव टू चेंज योर डाइट सो यू कैन मेंटेन योर आइडियल रेंज ऑफ वेट. गेट इट? अब जैसे कि आप बात कर रहे हो कि आप अगर हम वर्कआउट करें या फिर कार्बोहाइड्रेट पे कट करें, अपनी कैलोरी इंटेक पे कट करें, तो क्या आप डायबिटीज से वापस जा सकते हो पीछे? तो मैं इसके लिए तो कहना चाहूँगा नहीं हो सकता ये. If you have been diagnosed as diabetic, then no. But if you are pre-diabetic, yes. तो ये साथ काफी हद तक अच्छी लाइफ के तरफ जा सकते हो. अब इसके पीछे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों ऐसा होता है, एकदम सिंपल भाषा में. ठीक है, तो आप पहले मैंने बताया था कि ओबेसिटी होने से वजह से आपके में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. तो अगर आप वर्कआउट करते हो, अच्छी डाइट फॉलो करते हो, तो नेचुरली आपका वेट लॉस होगा. वेट लॉस होने की वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन एक्ट कर पाएगा, तो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे. दूसरा रीजन ये है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी मसल मास बढ़ेगी. मसल मास बढ़ने का मतलब है कि आपके बॉडी में सेल्स एक्स्ट्रा हो गए. तो जो ग्लूकोज ओवरफ्लो कर रहा था, ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको कंजम्पशन करने के लिए भी मसल आपके पास एक्स्ट्रा आपने जनरेट कर ली. तो नेचुरली ब्लड ग्लूकोज आपको कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो बचेगा कम आपके पास. तो ये दोनों रीजन है कि आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइज हो जाता है. And coming to the symptoms of diabetes, what are the symptoms? When you are having extra glucose in your bloodstream, तो आपकी बॉडी के सेल्स को वो ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है. सिंस ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल फॉर योर बॉडी, तो आपकी बॉडी द बॉडी विल फील स्टार्विंग. इट विल फील लाइक हंग्री. हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो आप बार बार खाएंगे. विल ईट मोर ओपनली. सो इट इज नॉन एज पॉलीफेजिया. पॉली मीन्स मल्टीपल टाइम्स, फेजिया मीन्स ईटिंग. आप बार बार खाएंगे. अब जब बार बार खाएंगे, ग्लूकोज तो राइज हो ही रहा है ब्लड स्ट्रीम में. किडनी क्या होता है, किडनी क्या करता है? किडनी आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में है, उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है थ्रू यूरिनेशन. तो आप वॉशरूम ज़्यादा जाएंगे. यू विल गो टू द यूरिनेशन मोर ऑफनली. तो आप तो इस सिम्टम को बोलते हैं पोलीयूरिया. पोली मीन्स मल्टीपल टाइम्स, यूरिनेशन यूरिया, तो इसको बोलते हैं पोलीयूरिया. अब जब आप यूरिनेशन बार बार करेंगे तो आप यू विल फील मोर थर्स्टी, तो आप पानी भी ज़्यादा पिएंगे, तो इसको बोलते हैं पोलीडिप्सिया. अब चलिए 3 रीजन हमें क्लियरली मिल गए, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, जो तीनों लिंक्ड है. इसके बाद एक और चौथा जो आप सिम्टम अपने में नोटिस कर सकते हो, वो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में. इसका मतलब ये होता है कि आप जब डायबिटिक आप मतलब उस राह पे बढ़ रहे हो कि आपको डायबिटीज होने वाली है, तो आप ये फील करोगे कि आप जब पहले जितने काम कर सकते थे, वो काम आप उतने आसानी से नहीं कर पाओगे. तो इसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंटॉलरेंस. जो भी नॉर्मल आपके डे टू डे वर्क है, वो क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन आपके सेल्स तक नहीं जा पा रहा है, तो फ्यूल नहीं मिल पा रहा है सेल्स को, तो वो काम नहीं कर पा रहे उस हद तक. लाइक सेकंड फ्लोर पे आप इजीली चढ़ लेते थे 5 स्टेयर्स पहले,
इफ यू आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक, तो आपको लगेगा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको हो सकता है फर्स्ट फ्लोर तक ही जा पाए, उसके बाद यू विल फील टायर्ड। तो ये इसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। वो आप नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो कि आप नॉर्मली कर सकते थे। Thank you for answering this question, sir. So, moving forward, people with diabetes are often asked to control their intake of carbohydrates. And if that's so, why is it okay to eat fruits? Aren't they full of carbs? Are some fruits better than others? Specifically, what fruits would you recommend to a See, person with डायबिटीज में क्या pre-diabetes or होता है कि हमें diagnosed कैलोरी diabetes? इंटेक तो कम करना ही है, दैट इज फॉर श्योर। अब आप कम खाओ, मतलब मीठी चीज़ें कम खाओ, ऐसी चीज़ें कम खाओ जो कि मतलब जिसको हम जंक फूड कहते हैं। नॉर्मली सबको पता होता है क्या दिक्कत है, मतलब कौन से फूड में हाई कैलोरी डाइट है, तो उसे हमें कम खाना चाहिए। अब बात आती है फ्रूट्स हम क्यों खाएं। डॉक्टर Yeah. बोलता है कि फ्रूट खाओ, या पेपर में निकल जाता है कि फ्रूट खाना चाहिए हमें डायबिटीज में, जामुन खाओ को कहता है, तो लेकिन वो हाई कैलोरी कंटेंट है। लेकिन हम फ्रूट्स इसलिए खाते हैं क्योंकि फ्रूट्स में कार्ब्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी चीज़ें उसमें भरी हुई हैं, चाहे वो एसेंशियल मिनरल्स हुए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हुए, या एंटीऑक्सीडेंट्स हुए, ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को बहुत बहुत ज़्यादा नीड होती है कि आप रिवर्सल हो सकता है आपकी बॉडी में फ्यूचर में, कि आप एक बेटर लाइफ जी पाओ। तो फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें फ्रूट से मिलता है उसे हमें कंपनसेट करने के लिए किसी न किसी तरीके से डाइट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ चाय मत पियो, चाय में चीनी शुगर मत डालो, उसकी जगह आप फ्रूट खा लिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। और ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि जो हाई फाइबरस फ्रूट्स हुए जिसमें फाइबर ज़्यादा है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल्दी से नहीं आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं करती है ना। तो अब जैसे फ्रूट्स के एग्जांपल जैसे आप पूछ रहे हो, तो उसमें क्या देखो, एप्पल हो गया, एप्पल, कीवी हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, और जैसे पपाया, डेट्स है ना, these kind of fruits they can consume easily। pear, you can eat pear, नाशपाती, ये सारी चीजें आप खा सकते Okay. Thank you a lot, sir. So, moving forward, certainly it is often said that diabetes won't go away for the rest of your life, and accepting it is only way you can make a positive approach towards battling it. A lot of people struggle with accepting this fact. So, what's your advice on how one should accept to live with this fact? Other than that, many people wonder what would happen if a person with diabetes remain So untreated let for me be long. very clear about it. Once you have been diagnosed with diabetes, you have to accept the fact that you have been diagnosed with a disease, certain disease. So you have to go ahead with this one. With proper medications, you should give yourself goals. Be it losing weight, or be it हैं, following a strict diet। following a strict diet, or maintaining your ideal weight range. तो इसके बाद आपको डाइट से चीट नहीं करना है, आपको प्रॉपर जो एक्सरसाइज रूटीन जो आपको बताया गया है वो आपको फॉलो करना है। यू नो देयर इज अ सेइंग, नथिंग कैन हार्म यू अनलेस यू वांट टू। तो इस तरीके से आपको लाइफ में आगे फर्दर जाना है। अब जैसे कि अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो करोगे, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रिलीजियसली सारे काम कर रहे हो, जो भी आपको एक अच्छी इंटरवेंशन जिसको कहते हैं हम, कि आप एक मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, तो ये सारी चीजें करने से आपको नेचुरली, हम लोग को भी लगता है अगर आप एक्सरसाइज करो तो एक अच्छा फीलिंग आती है, उसको एंडोर्फिन रिलीज होना कहते हैं, तो वो पॉजिटिव हार्मोन है आपके अंदर आता है। तो ये आप करोगे तो एक मतलब ये लूप बन जाता है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, उससे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, जिससे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि आप दोबारा वो काम करो, तो ये एक ऐसा लूप हो जाता है, आप बार बार करना चाहोगे वो काम। आपको रनिंग करके, जॉगिंग करके अच्छा लगा है ना, आप चाहोगे अगले टाइम नेक्स्ट डे आप चाहोगे कि वही पॉजिटिविटी में दोबारा फील करूँ, बट फॉर दैट यू हैव टू रिपीट whatever you did last time। लाइक आपको पॉजिटिविटी मिली जॉगिंग करने से, तो आपको नेक्स्ट डे भी जॉगिंग करनी पड़ेगी, फिर लूप कंटिन्यू करना है, दैट यू कैन फील पॉजिटिव थ्रू आउट द लाइफ। Thank you for answering this question, sir. Moving forward, what is the ideal diet that one can keep diabetes away? And a lot of people in India are still unaware about diabetes and its effect. What should be done to spread You know, awareness the about it? ideal diet should comprise all the macronutrients and the micronutrients. Macronutrients like carbs, carbohydrates, protein, fat, and fibers, along with some micronutrients like vitamins, minerals, and the antioxidants. Right?
So carbs, protein और fat ये भी vegetarian, non-vegetarians के लिए डिफर करते हैं. Like protein, if you are vegetarian, you can have protein from milk, दाल हो गई, pulses, soyabeans हो गए, and if you are non-vegetarian, meats हो गई, fish हो, chicken or mutton, whatever you prefer. बीच में जो एग वाले होते हैं वो एग वाले Vegetarian होते हैं, बीच में हो गए वो बीच में हो गए. Egg whites are the best protein you can have. है ना. And you should avoid the yellow part of it. It actually contains cholesterol, bad fat. अब कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें जो कि एक दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें जैसे कोर्स ग्रेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए जो जल्दी से इजीली डाइजेस्टेबल ना हो. जैसे पुराने जमाने में बाजरा खाते थे लोग, मोटे दाने खाते थे, दलिया खाते थे. अब हम जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है हम व्हीट खाने लगे. व्हीट सब मैदा बन गया, उसके भी छिलके फाइबर निकाल दिए, तो फाइबरस कंटेंट हम कम कर रहे हैं. हमें वापस जो नेचुरल था, दैट वाज द नेचुरल थिंग, अब हम जा रहे हैं वो ज्यादा मशीन मैकेनाइज्ड चीजें हैं. तो वो दैट वाज हमेशा से बेटर, क्योंकि वो आपके बॉडी में जाता है, वो जल्दी से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट नहीं करती है, तो आपके अंदर इंसुलिन की स्पाइक नहीं आती है. तो आप मतलब डायबिटिक्स हो लेकिन बहुत ही लीनियर ग्रोथ होती है आपके अंदर, मतलब धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है. तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलने चाहिए. प्रोटीन की बात बताई दी आप. फैट्स में हम Fats में there are two kind of fats, good fat and a bad fat. जो आपका bad fat है, जो कि stored fat है, saturate हो जाता है, वो आपको नहीं लेना है, like ghee और butter और refined oil. Good fat क्या होता है, like almonds, cashews, peanuts, ये आपको कंज्यूम करना चाहिए. अब ऑयल में बात करें तो सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारे अच्छे गुड फैट्स हैं. और घी तेल बोल लेते हैं, घी हो गया, बाकी आपके जितने रिफाइंड ऑयल हो गए या फिर बटर हो गया, जो हम कंसीडर करते हैं कि बहुत ही मतलब लैविश लाइफस्टाइल वाली चीज़ है, वो बेकार है, लिटरली बेकार है. सैचुरेटेड फैट्स हैं. Saturated fats. Thank you a lot, sir. I hope that this will surely help our viewers in many aspects. So here we are done with today's interactive session. I hope that you all will be gaining so much of knowledge about diabetes and things related to it. Thank you. So thank you everyone, and thank you, sir, for joining us and making this interactive I also want to session thank Vinay को very मैं good thank you platform बोलना to चाहूँगा give जिसने हमें knowledge. invite किया. और ब्लॉगर्स को इसकी टीम आप लोग जितने भी लोग हो सारे, मैं नाम तो सबके नहीं जानता, कार्तिक का पता है, मीमांसा का पता है ना, जितने भी लोग हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, अवेयरनेस अच्छा आप फैला रहे हो. तो मैं होप करता हूँ कि आगे भी हम लोग साथ में मिलेंगे कभी. Thank इसी you. साथ करते हैं. Thank you, Mansha. Yes, sir, sure.